ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો. તો આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી સબ્જેક્ટમાં પાઠ 6 હસી કા પિટારા ભણીશું. બરાબર. હવે હું તમને આજે સૌથી પહેલાં એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે એક વસ્તુ એવી છે કે જે આપણા બધાની પાસે છે, છતાં આપણે કોઈને આપતા નથી, અને એ આપવામાં આપણને કોઈ મહેનત થતી લાગતી નથી. બરાબર. આપણે કોઈ પૈસા ખર્ચવા પડતા નથી, છતાં પણ આપણે કોઈને આપતા નથી. તેવી વસ્તુ કંઈ તમને ખબર છે? હાસ્ય. બરાબર ને? હાસ્ય આપણી બધા પાસે છે. ને હસવું આપણને એકદમ સહેલાઈથી આપણે હસી શકીએ છીએ, છતાં કોઈની સામે આપણે એટલું સહેલાઈથી હસીએ છીએ? નથી હસતા. કોઈ હસાવે કે એટલું મહેનત કરે ત્યારે હસીએ છીએ. જ્યારે મમ્મીથી કે ઘરના કોઈ સભ્યથી રૂઠી જઈએ તો કેટલું મનામણી કરે તો પણ આપણે હસતા નથી. તો જીવનમાં હાસ્ય ખૂબ જ અગત્યનું છે. જીવનમાં હાસ્યનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. તો હસતા જ રહેવું જોઈએ. જીવનમાં હસવાના ઘણા બધા ફાયદા છે. તમે ઘણી વખતે જોયું હશે, કોઈ બાળક કે કોઈ ફોટોઝ પાડતા હોય ત્યારે ઊભેલા કોઈ જ હસતા ના હોય. પછી બાળક કે પેલો ફોટોગ્રાફર કે ચીઝ એટલે બધા ખોટી ખોટી સ્માઇલ આપશે, અને પછી જેવો ફોટો પડી ગયો એટલે હતા એવા ને એવા. તો એમ ન થવું જોઈએ. અંદરથી મનથી જ હસો. બરાબર ને? કારણ કે હસશો, કહેવાય છે ને, હસે એનું ઘર વસે. તો ખરેખર હસવાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. તમને ઘણા બધા રોગ થયા છે તો તમે ડૉક્ટર પાસે જશો તો ડૉક્ટર દવા તો આપશે, પણ દવા સાથે શું કહેશે કે જીવનમાં બધા જ દુઃખોને ભૂલીને હસતા રહો, તો અડધા રોગ તમારા એમને એમ મટી જશે. ખરું ને? ટીચર પણ તમને ભણાવતા હોય તો જોડે જોડે થોડી કોમેડી કરતા હોય છે. તો શા માટે? કે હસતા હસતા, રમૂજ કરતાં કરતાં જો ભણશો તો ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ પડશે અને સહેલાઈથી તમને યાદ રહેશે. તો ભણવું જ, ભણતા પણ હસો એટલે માપમાં. ભણતા પણ રમો, હસો. બરાબર. જીવનમાં રમૂજ વૃત્તિ તો હોવી જ જોઈએ. તમે પિક્ચર જોતા હશો તો એમાં એકાદું તો કોમેડિયન હોય જ છે. બધા સિરિયસ હોય છે? નથી હોતા. કેમ? કારણ કે તો જ આપણને જોવું ગમે, નહીંતર આપણને પિક્ચર સિરિયલ જોવી ગમે નહીં. બરાબર. તો હસવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે પણ આ પાઠમાં હસી કા પિટારા, પિટારા એટલે જથ્થો, હસવા માટેના સામાન બહુ જ બધો આપણા આ પાઠમાં આપેલ છે. એટલે કે નાના નાના ટૂચકા આપેલા છે. તમે ઘરની બહાર આમ જોશો ને તો તમને કેટલાય બધા એવા નાના નાના કિસ્સા મળી જશે કે જે કોઈ આપણને હસવા માટે નથી કરતા, પણ આપણને જોઈને જ હસવું આવી જાય છે. બરાબર. તો ખરેખર જિંદગીને જીવવી હોય તો હાસ્યને મહત્ત્વ આપવું જ જોઈએ. બરાબર. તો આપણા આ પાઠમાં પણ નાના નાના ટૂચકા આપેલા છે, અને પોતાની કહેવાય ને બાળ બુદ્ધિ, બરાબર, ઘણી વખતે રમૂજ વૃત્તિના લીધે પણ આપણે આવી રીતે હસી પડતા હોઈએ છીએ. એવા નાના નાના ટૂચકા આપણે આ પાઠમાં આપેલા છે, જે આપણે ભણીશું. ઓકે, ચલો. તો આપણે વારાફરતી પહેલાં ટૂચકા શું છે, શું કહેવા માગે છે એ સમજીશું, અને પછી એ વિડીયો દ્વારા જોઈશું. ओके, चलो. सबसे पहला टूचका. तो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि मैं घर में काम से अंदर हूँ, तुम बाहर बैठे हो तो देखो कि कहीं ये गेहूँ मैंने जो सुखाए है वह गाय आके खा ना जाए. बालक बाहर बैठा है, उसने में गधा आता है. गधा आते ही वह गेहूँ खाने लगता है, लेकिन बालक उसे हटा नहीं रहा है. उतने में उसकी माँ वापिस आती है. वह देखती है तो कहती है, अरे अरे रे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो. तब ये छोटा सा बालक अपनी मासूमियत से कहता है
कि माँ आपने कहा था कि गाय गेहूं ना खा जाए, आपने गधे को तो नहीं कहा, और ये तो गधा है तो खा सकता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बात जो हमें पता नहीं होती, उसमें भी हमें हंसी का पिटारा मिलता है, यानी कि हमें हंसने की बात दिखाई देती है। ओके, अब मैं आपको इसी टुचके को मैं एक वीडियो के द्वारा आपको दिखाती हूँ। ओके बेटा, देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। गधा खाता है। लड़का देखता ही रहता है। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। अब दूसरा, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हिंदी व्याकरण में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। तो दो दोस्त थे, वह हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। उसमें पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्वेश्चन किया कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो उसका क्वेश्चन कैसा है? आधा अधूरा। और उसे सुनकर दूसरा दोस्त है जो खाने का बहुत शौकीन है, वह आंसर देता है मूर्ख, कि ये दीपक कैसा है? मूर्ख है, इसलिए उसके सामने मिठाई पड़ी है और वो नहीं खा रहा है। लेकिन अगर पहले दोस्त ने क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इस वाक्य में जो दीपक है उसका मतलब क्या है? दीपक है वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है? तो दूसरा दोस्त उसका सही आंसर देता, लेकिन उसका अधूरा क्वेश्चन देख सुनकर दूसरे दोस्त ने अपने आप से आंसर दे दिया, वरना उसका सही आंसर आता है दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक है संज्ञा। तो इस प्रकार आधे अधूरे क्वेश्चन से भी हमें हंसी छूट जाती है, यानी हमें हंसने की बात दिखाई देती है। ओके, अब फिर से पिक्चर देखते हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त मूर्ख। अब तीसरा, आपने सुना है कि नकल में अकल नहीं होती। तो यहाँ ऐसी बात है, एक मालिक है और नौकर है। मालिक चाहता है कि नौकर मैं जो कहूँ वैसा ही करे, और नौकर भी कैसा है? अपनी अकल से काम नहीं करता। तो मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। नौकर ये बात समझ जाता है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वह वापस मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? तो ये क्या पूछने की बात है? लेकिन जो नौकर था उसमें भी अकल नहीं थी, वो भी अपनी अकल नहीं चलाता था। तो उसने यही सुना कि मालिक ने कहा है कि कोई भी काम करो तो पूछ कर किया करो। तो वह बिल्ली को दूध पीने दे या उसे भगा दूँ, उसके लिए वह पूछने के लिए आता है। तो ये भी एक छोटा सा लेकिन बहुत हंसी वाला टुचका है। मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर देखता है कि बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाऊं या उस मालिक को बताऊं? वो मालिक को कहता है, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? अब चौथा, एक आदमी है, दुकानदार के पास जाता है और जाकर कहता है, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो वो कुत्ते का बिस्कुट लेने के लिए जाता है। तब दुकानदार बहुत स्पीड में बोल देता है, यही खाओगे या घर ले जाओगे?
तो यानी कि उसके वाक्य से तो क्या पता चलता है कि ये दुकानदार जो खरीदने आया है वो उस आदमी को कुत्ता समझता है, इसलिए कहता है कि यही खाओगी या घर ले जाओगे। लेकिन शायद वैसा भी हो सकता है कि उस दुकानदार के वहाँ पर कुत्ते के बिस्कुट के अलावा आदमियों के यानी मानवीयों के भी बिस्कुट होंगे, और इसलिए वह पूछता है कि यही खाओगे या घर ले जाओगे। लेकिन उसे जैसे उसने क्वेश्चन किया जो आदमी ने कि भाई कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा, और उसके आंसर में जो उन्होंने आंसर दिया, तो उससे पता चलता है, ऐसा लगता है कि वह उसे कुत्ता समझ रहा है। अब उसका वीडियो भी देखते हैं। दुकानदार से, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा, यही खाओगे या घर ले जाओगे? अब लास्ट 5वां। एक रामू और श्यामू है। श्यामू अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने गया। बीच में उसे रास्ते में रामू मिला। तो रामू श्यामू को देखकर क्या कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? लेकिन श्यामू तो कुत्ते को लेकर जा रहा था, तो ऐसा रामू ने क्यों कहा? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तब एकदम हंसी से रामू कहता है, मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा, मैं ये कुत्ते से पूछ रहा हूँ कि तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। यानी कि उसका मतलब क्या है, कुत्ते को क्या पूछ रहा है, ये श्यामू है। वो श्यामू यानी कि जो उसे क्या कहता है, गधा है, तो उसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार भी हमें ऐसी बातचीत से भी हमें हंसी आने लगती है। फिर से हम इसे वीडियो में देखते हैं। रामू श्यामू से, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ।